آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، وہ بزرگ، وہ بھائی جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مسائل کا سامنا ہے، ان کو قرض دار ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ آج خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان کا چاند وہ چاند ہے جو تقدیر اور نصیب کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کی کامیابی، عروج اور ترقی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں مقدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج میں خود بھی پڑھوں گا۔ آج یہ وظیفہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی میں خود بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سورہ کوثر جو دولت کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر جو ہر مسائل کا حل ہے، سورہ کوثر جو رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں پیش کی جب کفار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے، توبہ نعوذ باللہ۔ رب کریم نے سورہ کوثر کو رب کے حضور، رب کے پیارے محبوب کے حضور تحفے میں پیش کیا اور کہہ دیا کہ کفار بے نسلے ہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی عزت اور وقار ہمیشہ رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیں، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زندہ ہے، آج تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ محبت قائم اور دائم رہے گی۔ تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ سورہ جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، وہ سورت جو تقدیر کے فیصلے کر دیتی ہے، اس مہینے میں جب نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں جب رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اس مہینے میں رب کریم سے من چاہی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اسی مہینے میں اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا مقدر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج شام شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو تو بہترین ہے، نہیں تو آپ بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، تو چاند کی خبر سنتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اگر کوئی کسی کوتاہی، کسی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی جب پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ پاتا، تو آپ کے پاس یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے۔ آپ مغرب سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، اور آپ اس دوران جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اس مقصد، اس حاجت میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہو، انڈیا سے، جاپان، بنگلہ دیش، عمان، نیپال، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ تک وہ وظائف لے کر آتا ہوں جو وجود رکھتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور بے شمار فائدے ہوئے ہیں۔ یہ وہ آزمودہ وظائف ہیں جن سے میری بہت سی بہنوں نے، بہت سی بیٹیوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا۔ اور آج شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کے نصیب میں بھی میرا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا، آپ کے مقدر چمک اٹھیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی رب کریم غیب سے پورے فرمائے گا۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق اور کہاں کہاں سے آ رہا ہے، راستے کہاں کہاں سے بن رہے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پر رہے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج شعبان کا چاند نظر آتے بھی 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ چند منٹ کے اندر آپ کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بے شک آزما لو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔
वाकई किसी अल्लाह के बंदे ने वजीफा बताया है, क्योंकि ये वजीफा पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपको दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज का ये वजीफा मेरी उन बहनों और भाइयों के लिए है जो मुसीबत में हैं, जो दुखियारे हैं, जो तंगदस्त हैं, जो परेशान हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जिनके घर में जवान बेटियां हैं, न रिश्ते आते हैं, लोग देखकर चले जाते हैं। आज बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, रिश्ता खुद चलकर आपके घर आएगा और जल्द शादी के असबाब भी हो जाएंगे। जिनके कारोबार नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात की नजर हो चुके हैं, चलते कारोबार तबाह बर्बाद हो चुके हैं, आप माही शाबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर को पढ़कर देखिए, बंद कारोबार में तरक्की, उरूज और कामयाबी यकीनी हो जाएगी। सिर्फ एक बार शाबान का चांद नजर आते ही ये वजीफा पढ़कर तो देखिए, मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिस्क की कामयाबियां और ये दौलत कहां कहां से आ रही है। मेरा रब बड़ा जलील है, बड़ा रहीम है। जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। जब देने पर आता है न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, नस्लों को आबाद फरमा देता है। अपने प्यारे हबीब के सदके आपके घर के बच्चे बच्चे को दौलतमंद बना देगा। सिर्फ आज माह शाबान का चांद नजर आते ही ये वजीफा एक बार पढ़ कर देखिएगा। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, किसी भी तरह की कोई कैद नहीं। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है वजीफा लाजमी पढ़ना। और ये हर मुसलमान का हक है, हर मर्द मोमिन का हक है कि वो शाबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर को एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़े, क्योंकि सूरह कौसर ही तकदीर के बंद तालों को खोलती है। और शाबान के महीने में तो नसीब और तकदीर लिखा जाता है। पूरे साल आपको क्या मिलना है, क्या रब ने आपसे लेना है, क्या आपको देना है, कब आपने मरना है, कब कौन जिएगा कौन मरेगा। शाबान के महीने में हर चीज का फैसला हो जाएगा। इस महीने को तकदीर और नसीब लिखने का महीना कहा जाता है। इसलिए खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि शाबान का चांद नजर आते ही आपने सूरह कौसर का ये खासुल खास और शर्तिया वजीफा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप तो क्या, आपके घर वाले भी अमीरों कबीर हो जाएंगे। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है, तवज्जो कीजिएगा। इससे पहले शाबान का चांद नजर आते ही खुसूसी दुआ करूंगा। आपने दुआ में शामिल जरूर होना है और आपने आमीन के साथ अपना पूरा नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ऐ मेरे अल्लाह, रजब का महीना अलविदा हो चुका, आज रब के प्यारे महबूब का महीना शुरू हो रहा है। शाबान का चांद नजर आते ही, नया चांद निकलते ही एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं। आज जो भी मंगते भिखारी फकीर बनकर तेरी बारगाह इलाही में बैठे हैं, ऐ अल्लाह, शाबान का नया चांद निकलते ही आज हम सब की एक ऐसी जिंदगी का आगाज फरमा जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े। ऐ अल्लाह, तू जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। ऐ अल्लाह, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, बे औलाद हैं औलाद अता फरमा, जिनके घर में जवान बेटियां हैं बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जो मांगा मुकद्दर फरमा। मुझ समेत आज हम सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आपने आमीन के साथ एक बार अपना पूरा नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है और कम से कम 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दुआ में शामिल हो जाएं। लाखों लोगों तक ये वीडियो जाएगी, पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की बिगड़ी बन जाए। अल्लाह वालों, वजीफे की तरफ चलते हैं। माह शाबान का चांद नजर आते ही या चांद की खबर सुनते ही बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर तो ये है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले एक बात तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आपने अभी तक वीडियो को स्किप कर करके या काट काट कर देखा हो, लेकिन अब अमल का तरीका बता रहा हूँ। शाबान का चांद एक बार नजर आता है पूरे साल में। मैं आपकी छोटी सी गलती, कोताही या वीडियो स्किप करके देखने की वजह से कोई अहम बात आपसे मिस हो गई हो, आपसे कोई बात छूट गई हो, तो फिर न कहना कि वजीफे का फायदा न हुआ। आज वीडियो स्किप कर करके देखने से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी आप खुद मारेंगे।
खुदारा वीडियो एंड तक देखिए, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकीन कामिल के साथ देखिएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ी है। आज इस महीने का चांद नजर आते ही नसीब और तकदीर लिखा जाएगा, रिस्क और दौलत की तकसीम हो जाएगी। आपने खुसूसी रब्बे करीम के सामने बैठकर अपने मकसद की नियत करनी है। जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर भी मांगोगे तो मेरा रब इस महीने में आपके नसीब में लिख देगा और आप अपने जाती मकान के हकदार हो जाएंगे। आप बे औलाद हैं, औलाद मांग लो। आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा मांग लो, क्योंकि इस महीने में ही औलाद का, रिस्क और दौलत का, हर शय का फैसला हो जाता है। इस महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर चमक उठती है, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो बंदा अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहता है, वो आज रब्बे करीम से जितना ज्यादा हो सकता है मांग ले, क्योंकि आज रब्बे करीम से आप जो भी मांगते चले जाएंगे वो आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। आप तमाम मकासिद की जो आपकी हाजात हैं, हाजत छोटी है या बड़ी, रब्बे काबा से मांग लो, शर्माना मत, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अपने तमाम मकासिद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो रहा है। रजब का महीना, रब का महीना गुजर चुका है, शाबान का महीना शुरू हो रहा है। शाबान का चांद नजर आते ही साथ ही पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने रब्बे करीम के 2 नाम पढ़ने हैं, जिसे या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु कहा जाता है। मैंने पहले बताया कि आज खजाने लूटने का महीना है। आज ये चांद अपने साथ नसीब और तकदीर के फैसले करके जाएगा। आपने पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु रिस्क देने वाली जात है और ये रब की सिफ्त भी है। जब कोई बंदा कबूलियत की घड़ी में या रज़्ज़ाक़ु पढ़ता है, मेरा रब रिस्क के 300 दरवाजे खोल देता है, रिस्क और दौलत से माला माल फरमा देता है। और जब कोई बंदा या फत्ताहु पढ़ता है, या फत्ताहु रब्बे करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई है कि कसम है मुझे इस नाम की, जो बंदा इस नाम से मुझसे मांगेगा, जो भी मांगेगा, मैं उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दूंगा। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अमल सिर्फ चंद मिनट का है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त लगेगा, फायदा आपका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई छोटी सी गलती कोताही से शाबान का चांद जो नसीब और तकदीर को लिख देता है, फैसले करके जाता है, आपकी कोताही से ये साल, ये मौका जाया हो जाए। आपने तवज्जो के साथ वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु 3 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को 11 बार पढ़ते दौरान जो कोई तंग दस्त है, फकीर भी पढ़ेगा तो मेरा रब बादशाही अता फरमाएगा। जिस घर में रिस्क की कमी है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु पढ़ने की देर है। आपके घर के कोने कोने से रिस्क और दौलत की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके बंद कारोबार में तरक्की और उरूज और आपके हर मसाइल का गैब से खात्मा हो जाएगा। सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा आज माह शाबान का चांद नजर आते ही खासुल खास अमल है। ये वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको याद है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है ये तवज्जो कीजिएगा। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 15 बार पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में एक रात शबे बारात की है। इस रात जिंदगी मौत का, नसीब और तकदीर का, रिस्क की तकसीम का, पूरे साल की हर हाजत को लिख दिया जाता है। पूरे साल का एक एक अमाल लिख दिया जाता है। आपकी पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ना है।
माह शाबान का चांद नजर आते ही, चांद की खबर सुनते ही पूरी रात आपके पास मौजूद है। पूरी रात में जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह पर चाहें, आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते जहां दिल करता है वजीफा पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। जिसको पूरी रात में वक्त नहीं मिलता वो यकम शाबान मगरिब से पहले पहले ये वजीफा पढ़ सकता है। यकम शाबान का पूरा दिन मौजूद है और ये वजीफा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ना है। सिर्फ 15 बार सूरह कौसर पढ़नी है। अगर ये सूरत पढ़ने के बाद आप करोड़ों भी मांगोगे तो मिलेंगे इंशाअल्लाह। 15 बार सूरह कौसर पढ़ने से आज जब रब्बे काबा के प्यारे महबूब का महीना शुरू हो रहा है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के वसीला से इतना नवाजेगी कि 15 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो भी मांगोगे मिलकर रहेगा। अल्लाह वालों, 15 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान अगर आप रब्बे करीम से खजाने भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। आप, आपके घर वाले, आपके घर का एक एक बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आपके बिगड़े काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। जिस काम के लिए आप सिफारिश, आमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ते थे, आज शबान का चांद नजर आते ही 15 बार सूरह कौसर पढ़ने से वो काम खुद हो जाएंगे और एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा नए चांद के साथ। जो लोग नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो माह शाबान का चांद नजर आते ही पहले नंबर पर 11 बार या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु को बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बताई है। और दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि सूरह कौसर नजरे बद का भी हल है, जादू जिन्नात का भी हल है, हसद का भी हल है। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको जादू जिन्नात और हसद से मारता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी बहनें आती हैं कि उरूज पर कारोबार, चलते कारोबार तबाही और बर्बादी का सबब बन जाते हैं। आज सूरह कौसर पढ़ने की देर है। आपको नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात से भी मुकम्मल हिफाजत हो जाएगी। सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़कर कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताया है। बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का आखिरी वजीफा तवज्जो से सुनिएगा। ये माह शाबान का वो अमल है जिसको पढ़ने वाला रब को राजी कर लेता है। अल्लाह वालों, आज मांगने वाला जो भी मांगेगा मिल जाएगा। हमने बड़े बड़े वजीफे, आपने बड़े बड़े अमाल किए होंगे, लेकिन आज का दिन, आज की रात, आज की ये कबूलियत की घड़ियां साल में एक बार आएंगी, क्योंकि आज शबान का चांद नजर आएगा। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शुरू हो रहा है। आज कमली वाले आका का महीना शुरू हो रहा है, जिसके सदके ये आसमान रब्बे काबा ने उठाया। इस जमीन पे मौजूद हर शय सिर्फ और सिर्फ रब ने अपने प्यारे आका कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। आज माह शाबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर के बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है और ये आयत हर किसी को जुबानी याद है। इस आयत को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इस आयत के क्या कमालात हैं? इस आयत को पढ़ने वाले पर खजाने खोल दिए जाते हैं। इस आयत को पढ़ने के बाद बंदा रब्बे करीम से जो भी मांगता है, रब की जात उस महीने में नसीब और तकदीर को लिखती है। जो लोग मनपसंद नसीब, मनपसंद तकदीर रब्बे काबा से लिखवाना चाहते हैं, वो इस कुरानी आयत को शाबान का चांद नजर आते ही लाजमी पढ़िएगा। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। इस कुरानी आयत को आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर रब्बे करीम के 2 नाम, फिर सूरह कौसर, और तीसरे नंबर पर इस कुरानी आयत को पढ़ना है। इस कुरानी आयत को भी आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जितनी तवज्जो, जितने ध्यान, जितने यकीन कामिल के साथ आप इस आयत को 11 बार पढ़ेंगे और इस दौरान जब आप एक बार इस आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ रहे होंगे, जो भी मांग सकते हो मांग लेना, क्योंकि 11 बार इस आयत को पढ़ते दौरान अगर एक लंबी लिस्ट रख कर बैठ जाओ और तमाम हाजात की जिद करना शुरू कर दो तो मेरा रब तमाम की तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। सिर्फ आपने 11 बार इस आयत को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा मैंने अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपनी दुखियारी बहन भाइयों को व्हाट्सएप कर चुका हूँ, खुद बता चुका हूँ, आपके हवाले कर दिया। इंशाल्लाह ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपकी कामयाबी, आपका नसीब और तकदीर चमक उठेगा और आप पूरा साल हाथ उठा उठा कर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया है। अब आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ 11 बार पढ़ना है, अपने अंदाज में पढ़ना है। कैसे बताया है, एक एक नुक्ता बता दिया है मैंने आपको।
दोस्तों मैं आपको वज़ाइफ डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आज की ये कबूलियत की घड़ी है और ये एक मौका साल के बाद मिलता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफे का फायदा ना हो और फिर एक मजीद एक पूरा साल, क्योंकि इस रात में, इस महीने में नसीब, तकदीर, रिस्क और दौलत का फैसला हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप एक मजीद साल गुर्बत, तंगदस्ती का शिकार रहें। खुदारा ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने के साथ ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और इस खास कबूलियत की घड़ी में हम सब की नेक जायज हाजात, मुझ समेत हम सब की नेक जायज मकासिद में कामयाबी को यकीनी बनाए। अल्लाह वाला वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, आप जिद करके मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब देता है तो बेहिसाब देता है और ना वो शक्लें देखता है ना अमाल देखता है। खुदारा इस खास कबूलियत की घड़ी में ये चंद मिनट का वजीफा लाजमी पढ़ लेना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।